Hello everyone, I am Akhil sir, your accounts and commerce teacher. Today I am going to discuss you the most important aspects of accounting, which is known as basic concepts. If you have clear concept of accounting, you can do account very easily. अगर concept अगर नहीं होगा तो account हम लोग नहीं कर पाएंगे. Which is the root level of accounting, because if our root level is correct, then we can do account easily. So we know that transactions are recorded in a business book. Transactions means all economic activities which can be measured in terms of money. जहाँ पे money exchange होता है, like purchase goods for cash, sold goods for cash. These are transactions. Started business with cash, where exchange of money. Teachers teaching to a student, getting fees from students. It's an economic activity. It's a transaction. Teachers teaching in a school, getting salaries from the school, it's an economic activity. Employees working in an office, getting salaries from the boss, it's an economic activity. So these activities are a part of transactions which are recorded in a business book. Non-economic activities where exchange of money is not involved are not recorded in a business book. So we are recording transaction in a business book under which method? There are two methods of recording. One is single entry system, another is double entry. Single entry system and double entry. Single entry system means where transactions are not properly kept, जहाँ पे सही तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जहाँ पे लेजर मेंटेन नहीं होता है. ओनली पर्सनल अकाउंट, कितना कैश मिला डेट कस्टमर से, कितना कैश पेड किया, एंड ओनली कैश अकाउंट इज मेंटेन. कितना कैश है, कितना कैश गया. नो प्रॉपर अकाउंटिंग इज रिकॉर्डेड. सो इट्स एन ऑब्सोलेट मेथड. ये ऑब्सोलेट हो गया, अभी रिकॉर्ड नहीं होता है. बट देयर इज अ सेपरेट चैप्टर इन अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. वो चैप्टर भी है, बीकॉम में भी है और 11 में भी है, विच यू हैव टू स्टडी इन 11 एंड ऑल्सो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर. बट मॉडर्न डेज अकाउंटिंग आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. सो एवरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ मॉडर्न डेज अकाउंटिंग अंडर डबल एंट्री सिस्टम. सो अंडर डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट. सो अंडर डबल एंट्री सिस्टम, under double entry system of accounting, every transaction has two aspects. Has two aspects. One is debit, another is credit. Generally we know that debit what comes in and credit means what goes out. But in order to record transaction in a business book, we should know the meaning of account and also classification of account. This is most important part. So account मतलब क्या होता है? What does the account mean? Like cash account, purchase account, bank account. What does it mean? Cash account means summary of cash transactions. Bank account means summary of bank transaction. Purchase account means total of purchase in a month or in a year. Sales account means total of sales in a year. So account means classification, means classified summary of transactions of that particular head. उस हेड का समरी को बोलते हैं हम लोग अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, cash account, bank account, capital account, purchase account, sales account, etc. So after classification of account, for recording transaction in a business book, we should know the classification of account. How account is classified? Account is classified into two categories. One is personal account and another is impersonal account. Personal account means any account which is related with human being and any organization.
like Ram, Shyam, Jadu, Madhu, Hindustan Motors Limited, Reliance India Limited, any society, club, association of persons, charitable organizations, these are all personal accounts. Under personal account there are two subcategories. One is debtors, another is creditors. Debtors means the customers to whom the goods are sold on credit, and creditors means the suppliers from whom the goods are purchased on credit. Impersonal means other than human being in any organization, like furniture, machinery, table, discount allowed, discount received, purchases, sales, these are all impersonal account. Impersonal account are divided into two categories. One is real account, another is nominal account. Real account means any account which is related with assets and properties, and nominal account means any account which is related with expenses, losses, incomes and gains. Okay, so we can make a chart over there. Classification of account. One is personal account, another is impersonal account. Personal are two categories. One is debtors, another is creditors. Impersonal means real, another is nominal. There are two approaches of classification. One is traditional classification and under modern classification. These are the summary of those two approaches. If you follow this, you can follow both these approaches. So we know that for recording, every transactions are at first recorded in the book, which is called journal. That is why journal is called a book of prime entry or original entry. Prime entry means transaction, or original means transactions are originated or started from journal. So every transactions are at first recorded in a business book, which is known as journal. That is why journal is called a book of prime entry or original entry, as transactions are originated or started from journal. So for recording in a journal, we should follow the rules of debit and credit. How account is debited or credited. So in case of personal account, rule is receiver of cash and goods is debited. The person or any organization who are going to receive cash or goods, whatever may be, will be debited. कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन अगर कैश हो या गुड्स को किसी भी चीज को रिसीव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट. एंड गिवर ऑफ कैश एंड गुड्स विल बी क्रेडिटेड. कोई भी आदमी अगर कैश को देगा या गुड्स को सप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. इन केस ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज रियल, अनदर इज नॉमिनल. जहाँ पे कोई आदमी का नाम नहीं रहेगा अदर देन ह्यूमन बीइंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई एसेट्स और प्रॉपर्टी का नाम रहेगा. तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, एसेट्स कम्स इन डेबिट, एसेट्स गोज आउट क्रेडिट. नॉमिनल में क्या रूल्स है, expenses and losses are debit, incomes and gains are credit. ये था ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया है, इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीजेस क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीजेस डेबिट.
मॉडर्न अप्रोच में पर्सनल के जगह कैपिटल को बोला गया है। देयर आर डिफरेंसेस बट दीज आर द समरी ऑफ दोस टू अप्रोचेस। दोनों अप्रोच में रूल सेम है। अभी जो मैंने बताया, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट रिसीवर ऑफ कैश एंड गुड्स डेबिट, गिवर ऑफ कैश एंड गुड्स क्रेडिट, इसी चीज को मॉडर्न अप्रोच में बोला गया है कैपिटल इंक्रीजेस क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीजेस डेबिट। ट्रेडिशनल में बोला गया एसेट्स कम्स इन डेबिट, एसेट्स गोज आउट क्रेडिट। मॉडर्न में बोला गया है एसेट्स इंक्रीजेस डेबिट, एसेट्स डिक्रीजेस क्रेडिट। ट्रेडिशनल में लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला गया, बट मॉडर्न में बोला गया है लायबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीजेस डेबिट। ट्रेडिशनल में बोला गया नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। मॉडर्न में बोला गया एक्सपेंसेस इंक्रीजेस डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीजेस क्रेडिट। ट्रेडिशनल में बोला गया इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। मॉडर्न में बोला गया है इनकम्स इंक्रीजेस क्रेडिट, इनकम्स डिक्रीजेस डेबिट। लेकिन दोनों अप्रोच का रूल्स सेम। अगर हम लोग बोलते हैं कि जर्नल एंट्री अगर पास करना है, अगर बोलते हैं स्टार्टेड मिस्टर रॉय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, हाउ टू पास एंट्रीज। तो जब भी कोई जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। Here 2 accounts are there, cash and Mr. Ramesh, because business started by the proprietor, and proprietor is a personal account. He is a human being. He is supplying cash into the business or giving cash into the business. So यहाँ पे सोचना पड़ेगा from the business point of view, तुम्हारे business में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो Mr. Roy business start कर रहा है cash invest करके, that means cash comes into the business. So entry क्या होगा? Entry will be cash comes in, which means real account. Cash is the asset, is a current asset. So cash comes in means cash account will be debited. It's my example sums. मिस्टर रॉय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश आ रहा है बिजनेस में, तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा, कॉलम कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक ए कॉलम? फर्स्ट, व्हाट इज जनरल कॉलम? क्या है फॉर्मेट? क्या है जनरल का? इन द बुक्स ऑफ लिखना होगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय जर्नल एंट्रीज, ये होगा जनरल कॉलम। डेट, then particulars, then LF ledger folio, then debit amount and credit amount. Because under double entry one account is debited, another is credited. तो ये जनरल एंट्री है, इसमें मिस्टर रॉय बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश इन्वेस्ट करके। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज कैश कम्स इनटू द बिजनेस। 1 लाख एंड क्रेडिट क्या होगा? कैश कौन दे रहे हैं यहाँ पे? मिस्टर रॉय। सो मिस्टर रॉय इज गिविंग कैश, मिस्टर रॉय क्रेडिट होगा। मिस्टर रॉय क्या दे रहा है बिजनेस में? मिस्टर रॉय इन्वेस्टिंग कैश इनटू द बिजनेस व्हिच इज नोन एज कैपिटल। सो अंडर traditional approach, giver of cash will be credited. Under modern approach, when capital increase it is credited. दोनों रूल से हम लोग देखते हैं तो कैपिटल दोनों में क्रेडिट होता है। अंडर ट्रेडिशनल में क्या होता है कि मिस्टर रॉय इज गिविंग कैश इनटू द बिजनेस, मिस्टर रॉय इज अ प्रोवाइडर, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, सो गिवर ऑफ कैश अंडर ट्रेडिशनल विल बी credited and he is giving cash in the form of capital. And under modern approach, capital increases for the business, so capital account will be credited. So the entry is cash account debit to capital.
टू मीन्स क्रेडिट, जनरल में क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों में इक्वल अमाउंट आता है, और नरेशन देना पड़ेगा एवरी एंट्री के नीचे। नरेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ दैट एंट्री। नरेशन मीन्स व्हाट एंट्री यू हैव पास्ड, इट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंट्री। सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ माय सम्स। Whenever I am teaching, I am giving with examples. So this is an example of what you will be able to do. Next entry will be if we asked purchase goods for cash for rupees 10,000. So purchase account is a nominal account. It's an expense for the business. So under traditional approach, all expenses and losses are debit. Under modern approach, expenses increases debit, expenses decreases credit. And when we are incurring any expenses, cash goes out from the business. So cash is a real account. Under traditional approach, assets comes in debit, assets goes out credit. Under modern approach, assets increases debit, assets decreases credit. Both meanings are same. So in this entry, purchase goods for cash 10,000, purchase account means purchase expense increases, so it will be debited, and cash goes out, so cash will be credited. So purchase account debit to cash. Okay, and after that entry you have to give the narration of that entry. Being goods purchased for cash, being goods purchased for cash. Okay, got it? Now next entry, if you have asked that sold goods for cash, or if it is given cash sales for rupees 30,000. Sold means sell, income to the business. जब गुड्स को सेल करते हैं हम लोग, हमारे पास कैश आता है। परचेज में क्या होता है, कैश जाता है इसलिए वो क्रेडिट होता है, और परचेज क्या मेरा एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होता है। जब गुड्स को हम सेल कर रहे हैं तो मेरे पास कैश आ रहा है। सो अंडर रियल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच, एसेट्स कम्स इन डेबिट, सो कैश जब आ रहा है कैश डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्या है इनकम, वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोनों अप्रोच अगर फॉलो करेंगे, दोनों में क्या बोला गया है, ट्रेडिशनल में क्या बोला गया है कि एसेट्स कम्स इन डेबिट, एसेट्स गोज आउट क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जब गुड्स हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है मेरे पास, एसेट्स कम्स इन, और इनकम्स मेरा इनकम क्या होता है क्रेडिट, सेल्स क्या मेरा इनकम है तो क्या हो जाएगा वो क्रेडिट, जो कि ट्रेडिशनल। दोनों अप्रोच का लेकिन मीनिंग सेम है। मॉडर्न में क्या बोला गया है, एसेट्स इंक्रीजेस डेबिट, कम्स इन ऑन इंक्रीजेस, दोनों का मीनिंग लेकिन एक ही है, कम्स इन और इंक्रीजेस दोनों का मीनिंग एक ही है। और मॉडर्न में क्या बोला गया है, इनकम इंक्रीजेस क्रेडिट, इनकम डिक्रीजेस डेबिट। ट्रेडिशनल में क्या बोला गया है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। सो अगर तुमसे पूछा जाए कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, अच्छा इसके बाद अगर आते हैं हम लोग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंक और कैश दोनों मेरे एसेट्स है, दोनों मेरा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, एसेट्स कम्स इन डेबिट, एसेट्स गोज आउट क्रेडिट। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच,
मॉडर्न में क्या बोला, एसेट्स इंक्रीजेस डेबिट, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट। तो जो एसेट मेरा बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, जो एसेट घट रहा है वो क्रेडिट होगा। सो डिपॉजिटेड में क्या होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश घटता है यहाँ पे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री क्या होगा यहाँ पे, अगर बोलते हैं 13th को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एंट्री क्या होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा और एक चीज है, अगर बोलते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ओपन द बैंक अकाउंट, अगर ये क्वेश्चन आया तो ओपन द बैंक अकाउंट और डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, दोनों का मीनिंग लेकिन एक ही है। हाउ अकाउंट इज ओपन इन द बैंक, एन अकाउंट इज ओपन इन द बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक। अकाउंट ओपन कैसे होता है, कैश डिपॉजिट करने के बाद। सो अगर क्वेश्चन तुमको आता है ओपन अ बैंक अकाउंट या फिर बोलते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, दोनों का एंट्री लेकिन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, गॉट माय पॉइंट। सो ओपन अ बैंक अकाउंट and deposited cash into bank, both meanings are same, being cash deposited into bank. Okay, I am trying to explain you with the help of an example, and by explaining all these entries so that you can understand very well. Next entry, if we have asked in the question that withdrew cash from bank, withdrew means कैश निकालना। जब हम कैश विथड्रू करते हैं तो मेरा क्या होता है, कैश बैलेंस बढ़ता है मेरा ऑफिस का। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक मीन्स कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिशियल पर्पस, बट इफ इट इज आस्क्ड विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, at that time our office cash does not increase. अगर क्वेश्चन में रहता है विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, अपने इस्तेमाल के लिए, उस वक्त मेरा ऑफिस का कैश बढ़ता नहीं है, अपने प्रोप्राइटर अपने इस्तेमाल के लिए यूज करेगा। सो इफ इट इज आस्क्ड विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक सिंपली, और इट इज गिवन विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दैट मीन्स कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस का मतलब होता है कि मेरा ऑफिस कैश इंक्रीज होगा। तो लाइक द प्रीवियस वन, जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा, जो एसेट घटेगा वो क्रेडिट होगा। इन टर्म्स ऑफ रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। सो बाय विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक आवर कैश बैलेंस इंक्रीजेस एंड आवर बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। So the entry will be cash account debit to bank. Okay. Say it is given 16. Cash account debit to bank account. Say 15,000. Withdrew being cash withdrawn from bank for office use. Okay. Next statement is given that withdrew cash from bank for personal use. At that time, cash account will not be debited because our purpose is to withdraw cash from bank for a proprietor's own use, not for the official use. At that time, our office cash does not increase, but it is withdrawn for personal use. मेरा ऑफिस कैश नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्रोप्राइटर अपने इस्तेमाल के लिए कैश विथड्रॉ किया है। At that time, instead of cash account, we have to debit drawings account, and our bank balance decreases by withdrawing cash. जब भी कैश को विथड्रॉ करते हैं बैंक से मेरा बैंक बैलेंस घटता है, तो जो एसेट घटेगा वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। सो अगर विथड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए, उस वक्त एंट्री क्या करेंगे हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स टू बैंक। अगर बोलते सर बताइए पर्सनल एग्जांपल दीजिए, लाइक इनकम टैक्स पेड, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, हॉस्टल फीस पेड फॉर द चिल्ड्रन, LIC प्रीमियम पेड, NSC परचेस्ड,
These are the examples of drawings. Household expenses. Okay. Withdrew cash from bank for personal use. Okay. Next we come to the point. Previously example दिया purchase goods for cash. now हम आते हैं credit purchase के लिए. अगर तुमको पूछा जाए purchase goods from Imran on credit रुपीज 32,000. तो यहाँ पे परचेज अकाउंट है और इमरान अकाउंट है. परचेज क्या है मेरा नॉमिनल अकाउंट, और परचेज मेरा क्या एक्सपेंस है वो डेबिट होगा. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच. अंडर मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंसेस इंक्रीजेस डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीजेस क्रेडिट. अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट क्या बोला जाता है? एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पे किसी आदमी का नाम रहेगा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या कंपनी हो, या सोसाइटी हो, या लोकल अथॉरिटी हो, या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो. दीज आर ऑल कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ पर्सनल अकाउंट. इमरान इज अ प्रोप्राइटर, सप्लायर ऑफ गुड्स. इमरान इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ गिवर ऑफ गुड्स. So in terms of traditional approach, giver of cash and goods will be credited. So when we are purchasing goods on credit from a supplier, he is a giver of goods to us. At that time supplier क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा. ट्रेडिशनल में इसको एक्सप्लेन किया गया, मॉडर्न में एक्सप्लेन नहीं किया गया. मॉडर्न में बोला गया है इसके बारे में इग्नोर है. So this is given in the traditional approach, that is receiver of cash and goods debit, giver of cash and goods credit. तो अगर गुड्स खरीदते हैं हम लोग क्रेडिट में, एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और क्रेडिटर. तो एंट्री क्या हो जाएगा? अगर सम में बोलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान ऑन क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू इमरान अकाउंट. तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू इमरान अकाउंट. ये था क्रेडिट परचेज. सिमिलरली अगर बोलते हैं हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू इमरान अकाउंट, सपोज दिया हुआ 32,000. नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम इमरान ऑन क्रेडिट. ओके. अगर बोलते हैं तुमसे पूछा जाए सोल गुड्स टू जॉन ऑन क्रेडिट. जॉन मेरा क्या? ह्यूमन बीइंग, इट्स अ पर्सनल अकाउंट. जॉन को गुड्स बेचा क्रेडिट में, सोल्ड मतलब सेल्स क्रेडिट में. जब भी गुड्स को सेल करेंगे सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट्स इनकम टू द बिजनेस. और जॉन क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट. तो अंडर ट्रेडिशनल इसके एक्सप्लेन किया गया पर्सनल अकाउंट को. रिसीवर ऑफ कैश एंड गुड्स विल बी डेबिटेड. सो जब हम गुड्स बेच रहे हैं जॉन को, जॉन इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स. तो एंट्री क्या होगा? जॉन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिकॉज सेल्स क्या है? मेरा इनकम है. सो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? जॉन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जॉन ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जॉन ऑन क्रेडिट. Okay. Now if it is given that purchase machinery for cash, मशीनरी खरीद रहे हैं कैश देकर, तो यहाँ पर दो अकाउंट है. और एक चीज याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी गुड्स परचेज करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट होगा. लेकिन जब गुड्स नहीं रहेगा, अदर देन गुड्स रहेगा, तो जो खरीदेंगे वो डेबिट होगा. मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है, मेरा एसेट्स है. अब एसेट्स का ये फिक्स्ड एसेट है. फिक्स्ड का मतलब जो एसेट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे मोर देन 1 ईयर, देयर बेनिफिट एक्रूड फॉर मोर देन 1 ईयर. करंट एसेट को मतलब क्या होता है? जो एसेट का बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है. लाइक स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. These are our current asset which is used within a year
and which are increases or decreases. But fixed asset क्या है? जिसका बेनिफिट हमको सालों साल तक मिलता रहेगा, इसलिए जो इस्तेमाल करते हैं उसका वैल्यू जो घटता है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, जो अलग से चैप्टर है, 11 में भी है और बीकॉम में भी है, फर्स्ट सेम. सो अगर बोलते हैं परचेज मशीनरी फॉर कैश, व्हाट इज द जनरल एंट्री? इफ इट इज परचेज फॉर कैश, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. Assets increases debit, assets decreases credit under modern approach, and under traditional approach, assets comes in debit, assets goes out credit. Machinery और cash दोनों मेरे assets है. Machinery मेरा fixed asset है, cash मेरा current asset है. तो जो asset बढ़ रहा है वो debit होगा, जो asset घट रहा है वो credit होगा. तो machinery मेरा increase हो रहा है, आ रहा है business में. So machinery account debit to cash. Machinery account debit to cash. Being machinery purchased for cash. Okay. अगर बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में आता है परचेज स्टैम्प, तो एंट्री क्या होगा? परचेज नहीं होगा, क्या होगा? स्टैम्प मतलब पोस्टेज, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, दिस इज एग्जांपल सम्स. इफ इट इज गिवन परचेज स्टेशनरी, द एंट्री विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंटली है, जब हम लोग गुड्स खरीदा क्रेडिट में, पे भी तो करना होगा. पहले क्या एग्जांपल दे? परचेज गुड्स फॉर इमरान. अब क्या करेंगे? अगर बोलते हैं पेड टू इमरान बाय चेक, तो चेक में बैंक बैलेंस घट रहा है. जब भी चेक रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट डेबिट, जब चेक से पेड होगा बैंक अकाउंट क्रेडिट. इफ इट इज गिवन पेड टू इमरान बाय चेक, तो एंट्री क्या होगा? इमरान अकाउंट डेबिट. क्यों इमरान डेबिट होगा? बिकॉज इमरान इज द रिसीवर ऑफ चेक. इन टर्म्स ऑफ पर्सनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, receiver of cash or check, whatever may be, or goods are debited. If it is given paid to Imran by check, entry क्या करेंगे? Imran account debit, because Imran is a personal account, he is receiving check, and our bank balance decreases, so bank account will be credited. So the entry will be 26, Imran account debit to bank. Suppose there is payment of 20,000. तो the narration क्या लिखेंगे हम लोग? Paid to Imran by check, being amount paid by check to Imran. If it is given, जब गुड्स बेचा था क्रेडिट में, हम लोग को कैश मिलेगा, चेक मिलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर बोलते रिसीव्ड चेक फ्रॉम जॉन, तो चेक आने का मतलब मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और एसेट्स इंक्रीजेस. बैंक क्या मेरा एसेट्स है. जब चेक से पेड किया था बैंक मेरा डिक्रीज हुआ था, लेकिन जब चेक मिलेगा तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और जॉन से मिल रहा है, तो जॉन विल बी आवर गिवर ऑफ चेक. रिसीवर ऑफ कैश और चेक इज डेबिट, ऐसा इमरान हुआ है. गिवर ऑफ कैश एंड चेक क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट. तो एंट्री क्या लगेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट. Okay. Bank account debit to John. Being check received from John. Okay. अगर बोलते हैं I have explained you with all the entries at the beginning of your chapter journal. In this chapter there is more entries are there like VAT,
GST, VAT, GST will be there. Input GST and output GST is there, and trade discount is also there. I will be shared on my next video. So hope you understand my concept, and please subscribe, like and share and comment on my video so that I can improve my technique of my teaching so that for better future of